Hello students, welcome to Edify JEE NEET Pragyan batch. Like in previous class, I have completed the biological classification. Okay. So today I am going to discuss. I am going to start a new chapter, that is plant kingdom. Okay. I am going to start a new chapter, that is plant kingdom. Today we are going to discuss about the basics of plant kingdom and about the algae, the first class of plant kingdom. Okay. चलो डिस्कस करते हैं. First, before going to plant kingdom, we should know the introduction, which type of organisms are present in case of plant kingdom. Okay, first is they are all the multicellular plants. जो भी present होते हैं यहाँ पे वो multicellular होते हैं, they are not unicellular. Okay, multicell होते हैं. Next, eukaryotic plants. Eukaryotic plants are placed in kingdom Plantae. Eukaryotic हो, they are not prokaryotic. Eukaryotic plants are placed in kingdom Plantae. They are autotrophic, that is their mode of nutrition is autotrophic. That means they can prepare their own food. Okay, they can prepare their own food. Autotrophic, their mode of nutrition. This is the overall introduction about the plant kingdom you have to know. Okay, after that we'll divide into several classes and then we'll discuss in details. Okay, chalo. First, the plant groups are included in the kingdom Plantae. You have to know which plant groups are included in kingdom Plantae. देखो, सबसे पहले algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm. What we will do is that algae, it will take almost 2 classes to complete. Then bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm. Will complete each and every class in different classes. Okay, and we'll take a separate class for each classes of plant kingdom. Okay, chalo. So we'll discuss about the algae now. Okay, so before going to algae, there is a topic known as classification system. You have to know algae हम पढ़ाने वाले हैं. First you have to know द क्लासिफिकेशन सिस्टम. 2 क्लासिफिकेशन है, एक है आर्टिफिशियल है, एक है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, तो देखो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसे बेस्ड होते हैं, मेनली ऑन वेगेटेटिव कैरेक्टर्स. ओके, जैसे प्लांट के कैरेक्टर्स होते हैं, प्लांट में होते हैं ना वेगेटेटिव कैरेक्टर्स, स्टेम हो गए, रूट हो गया, बल्बिल हो गया, रूट, बल्बिल, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, आर्टिफिशियल सिस्टम किस पे बेस्ड होता है, वेगेटेटिव कैरेक्टर्स. यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नेचुरल में क्या होता है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स. जो भी नेचुरल एफिनिटीज जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उस पे बेस्ड होता है. नेचुरल मतलब नेचुरल में बेस्ड होगा. जैसे कि इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरनल फीचर्स, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी मीन्स द inside internal structure of plant, anatomy inside उसकी सेल कैसे होती है, टिश्यू कैसे होते हैं, what are the important functions of the plant. Okay, that we are going to study in case of internal features, that is in natural affinities. Okay, embryology, that is embryology, ये पार्ट जो है हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, embryology. And also and not in case of plant also there is embryology, because plant also reproduces and it produces fruit. Okay, embryology in case of plant, embryology in case of humans are different, almost the same thing, but जो embryology plant में होते है उसको plant embryology, जो animal में human embryology. Okay, next phytochemistry are considered here. Okay, classification for flowering plants was given by, this question always come in the NEET exam. क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स किसने दिया था, जॉर्ज बैंथम एंड जोसेफ डैल्टन होकर, द वेरी फेमस साइंटिस्ट. यू हैव टू रिमेंबर हिज नेम. ओके, चलो नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. किस पे बेस्ड होता है, फाइलोजेनेटिक का मतलब ही होता है इवोल्यूशन. ओके, दैट मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इसी पे बेस्ड होते हैं. ओके, नेक्स्ट is numerical taxonomy. Numerical taxonomy is based on all observable. जो numeric मतलब whatever you will observe. Okay, जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को बेस्ड करके डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी. दिस इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम नंबर कितना है,
क्रोमोसोम नंबर कितने, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। हर ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, ओके। Next, structure and its behavior. This is about the cytotaxon. This terminology is important for you all. साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी में आपको क्रोमोसोम नंबर की इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में पता होता है, ओके। केमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन कैमो मीन्स इट्स केमिकल, कैमो मीन्स केमिकल, तो दैट विल बी बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजल्व कन्फ्यूजन्स आर ऑल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमी दिस डेज। बहुत सारी टैक्सोनॉमिस्ट जो है कैमो टैक्सोनॉमी को यूज करते हैं, ओके। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, classification system is done. Now we'll discuss the first class of plant kingdom, that is algae, okay। चलो, introduction। टर्म algae was given by, किसने दिया था, लिनियस। तो ये साइंटिस्ट हम हमेशा सुनने वाले इनका नाम, इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। ही ऑल्सो गेव द एनिमल नोमेनक्लेचर एंड ऑल्सो ही गेव द टर्म algae, सो हिज नेम यू हैव टू रिमेंबर, ओके। चलो, एंड दिस टर्मिनोलॉजी फाइकोलॉजी, ये भी कभी कभार नीट एग्जाम्स में आते हैं। फाइकोलॉजी वो होता है जो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम एल्गी की स्टडी करेंगे, उसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज फाइकोलॉजी, ओके। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एल्गी, यू कैन से अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एल्गी, ओके। फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, फ्रिट्ज। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी इज एमओपी आयनगर। दो डिफरेंट फादर आपको याद रखने हैं। इंडियन फाइकोलॉजी अगर आए तो एमओपी आयनगर एंड ओनली फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज फ्रिट्ज। सो बिफोर हमने एल्गी की हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री के बाद हम ये बताएंगे आपको कि अगर देखो क्वेश्चंस कभी भी आता है तो एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। तो आई एम गिविंग फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी दैट यू हैव टू रिमेंबर। देखो पहले देखो कैरा, CHERA। हम एल्गी में रेड एल्गी, ग्रीन येलो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, 4 टाइप ऑफ एल्गी पढ़ने वाले, ओके। हम आई एम गिविंग यू इन डिटेल्स एज अ होल द एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। कैरा, देन क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, okay, then it's volvox, a very common example of algae. Then you can go for Ulothrix, okay, THRIX. Then it's sargassum, SARGASSUM. Sargassum is also very interesting about algae. Gracilaria, then Giladium, then Fucus, then Kelp, then Chlorella, okay, Ectocarpus, and more one is Polysiphonium, okay। So this important example जब भी आपको क्वेश्चन आए from the algae, this example you have to remember, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी में पढ़ने वाले हैं। रेड एल्गी होगा, ब्राउन एल्गी आएगा, उन सब में हम इन सब एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले। बट इफ़ जस्ट शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाना है फॉर द रिवीजन, कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स है जो एल्गी में बिलोंग करते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एज अ होल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, हैबिटेट। विल स्टडी अबाउट द हैबिटेट मीन्स वेयर दे आर फाउंड, बेसिकली वेयर दे आर प्रेजेंट। एल्गी कहाँ फाउंड होते हैं, ओके, कहाँ फाउंड होते हैं, दे आर फाउंड इन फ्रेश एंड मराइन फॉर्म्स। फ्रेश भी होते हैं और मराइन फॉर्म भी होते हैं। ऑल्सो दे अकॉर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक मॉइस्ट स्टोन, जैसे गीला अगर स्टोन है, सॉइल हो गया, वुड हो गया, वहाँ पे एल्गी पाए जाते हैं, ओके। तो ये जो हैबिटेट है ना, हैबिटेट आपको याद रखना है कि कहाँ पे एल्गी बेसिकली पाए जाते हैं। जब आप एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो वेयर दे आर फाउंड फर्स्ट, एंड देन यू विल स्टडी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एल्गी, देयर स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, देयर रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ओके। चलो अब बात करते हैं फॉर्म्स की। एल्गी आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स लाइक, क्या क्या फॉर्म होता है, कॉलोनियल, COLONIAL, कॉलोनियल फॉर्म्स। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉल्वॉक्स याद रखना है आपको, एंड फिलामेंटस।
फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे पतले पतले फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइड। एंड कॉलोनियल में ऐसे कॉलोनी में गुच्छे में रहेंगे, दिस इज कॉलोनियल, ओके, एंड दिस इज फिलामेंटस, ओके। चलो, सो दिस टू एग्जाम्पल्स नीट में हमेशा आता है। कॉलोनियल algae is volvox, filamentous algae is eulothrix and spirogyra, okay। चलो नेक्स्ट देखते हैं बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म इन केस ऑफ algae, how does it looks? The plant body is thalloid, that is not differentiated into root, stem and leaves. Tissue system is also absent. जो बॉडी फॉर्म होते हैं इन केस ऑफ algae, रूट, स्टेम और लीफ में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ओके। और टिश्यू सिस्टम भी एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ एल्गी, टिश्यू सिस्टम नहीं होता है उनके अंदर, ओके। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एल्गी आर फोटोट्रोफिक, दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑफ देयर ओन, ओके। एंड दिस टू पिगमेंट जो हम हर क्लासेस ऑफ एल्गी में पढ़ने वाले, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, दिस आर द यूनिवर्सल पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल द एल्गी। ये यूनिवर्सल पिगमेंट हम हर एल्गी में देखेंगे। उसके एडिशन में कुछ और भी पिगमेंट्स है जो हम नेक्स्ट डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी में पढ़ने वाले हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर, द यूनिवर्सल पिगमेंट अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल पिगमेंट है कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन इज द यूनिवर्सल पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एल्गी, ओके। चलो नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एल्गी। हम एल्गी ही पढ़ रहे हैं, उसकी रिप्रोडक्शन, ओके। फर्स्ट इज वेगेटेटिव, सेकंड इज एसेक्सुअल एंड द थर्ड इज सेक्सुअल। इसके डिटेल्स हम पढ़ने वाले, ओके। चलो वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन कितने पार्ट टाइप्स होते हैं, एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, सेल एंड न्यूक्लियस बोथ विल डिवाइड। जैसे कि बाइनरी फिशन अगर है तो सेल और न्यूक्लियस दोनों डिवाइड होके टू सेपरेट इंडिविजुअल होंगे, टू डिफरेंट इंडिविजुअल फॉर्म होगा, एंड न्यूक्लियस विल आल्सो डिवाइड हेयर। एग्जाम्पल इज यूनिसेलुलर एल्गी में क्या होता है, बाइनरी फिशन होते हैं, बिकॉज जो बाइनरी फिशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं लाइक बैक्टीरिया, ओके, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो यू कैन से दैट दोज ऑर्गेनिजम्स who reproduce by binary fission are unicellular algae, okay। next about is fragmentation। fragmentation क्या होगा, filaments break down into small pieces and form new filaments। क्या होता है इन सब ऑर्गेनिजम्स में, filaments टूट के दो न्यू filaments फॉर्म होते हैं, उसी फिलामेंट से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। जैसे कि ऑल filamentous algae belongs to द फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द ज़ूओस्पोर्स। तो क्या होता है, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में अबाउट द ज़ूओस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, ये सब कॉनिडियोफोर्स के बारे में डिटेल्स बताया आपको। तो एल्गी में क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो ज़ूओस्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट दे आर फ्लैजेलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ओके। दे आर फ्लैजेलेटेड, दैट मीन्स दे कैन मूव। ज़ूओस्पोर्स क्या होते हैं, मूवमेंट करके वो जर्मिनेशन करते हैं और फिर नए प्लांट को राइज करते हैं, ओके। दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी का क्या होगा, सबसे पहले जानते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, एंथ्रोडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम। दिस इज द टर्मिनोलॉजी यू आर गोइंग टू रिमेंबर इन केस ऑफ एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एंथ्रोडियम, न्यू टर्मिनोलॉजी, एंड फॉर फीमेल इज ओगोनियम, ओके। सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी कैसे होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। सेक्स ऑर्गन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और उनके बाहर जैकेट नहीं होता है, इस तरीके से जैकेट इज एब्सेंट। आउटसाइड कवर को क्या कहेंगे, जैकेट कहेंगे। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शन जो है इसको आप याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं कारा, ग्रीन एल्गी का नाम है, जो इसका नाम है कारा, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, जो कि मल्टी सेलुलर है एंड जैकेटेड है, ओके। सेक्स ऑर्गन्स उनका मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है, तो एक्सेप्शन आपको याद रखना है ऑलवेज, ओके।
चलो, ये भी हम रिप्रोडक्शन अभी सेक्सुअल ही चल रहा है, ओके। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड, क्या होता है उनमें, हैप्लॉइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जाइगोट म्यूसिस, दैट मीन्स म्यूसिस कहाँ होता है, जाइगोट में होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जाइगोटिक म्यूसिस। वेरी सिंपल। लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, ओके। जाइगोटिक म्यूसिस, सो हैप्लॉन्टिक। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ब्राउन एल्गे में क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दैट मीन्स डिप्लॉन्टिक उनको कहेंगे जो गेमेटिक म्यूसिस फॉर्म करेंगे। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में जाइगोटिक गेमेटिक म्यूसिस के बारे में डिस्कस किया है, ओके। गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक इट। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल कैसा है, जिसमें इसमें हैप्लॉन्टिक है क्योंकि जाइगोट म्यूसिस जाइगोट में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या गैमेट हो रहा है। गैमेट का मतलब क्या हुआ, मतलब फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ओके। तो फ्यूजन होगा तो इसमें क्या होगा, लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ओके। चलो, नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होते हैं, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज आइसो, अदर इज एनाइसो एंड द थर्ड इज वोगेमस। ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट है, बट फिर भी फ्रॉम एल्गी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम डिस्कसिंग, ओके। आइसोगेमस क्या है, गैमेट्स व्हिच आर फ्लैगेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। आइसो का मतलब ही है सिमिलर, आइसो का मतलब क्या है, इट्स सेम और यू कैन से सिमिलर। तो जो गैमेट्स फ्लैगेलेटेड है और सिमिलर इन साइज है, जैसे कि एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, और जो नॉन फ्लैगेलेटेड होंगे दैट मीन्स दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल होके भी देयर गैमेट्स विल बी सिमिलर इन साइज, दे आर स्पाइरोगाइरा, ओके, दे आर स्पाइरोगाइरा। दैट मीन्स एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो सिमिलर इन साइज होंगे यूलोथ्रिक्स एंड दैट इज सिमिलर इन साइज बट नॉन फ्लैगेलेट, नॉन मोटाइल, दैट इज स्पाइरोगाइरा। एनाइसोगेमस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। आइसो मतलब सेम, एनाइसो मतलब डिफरेंट है, जो गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज होंगे, एग्जांपल यूडोरिना, ओके। वो गैमेट्स मतलब क्या होता है, वो गेमी मतलब फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गेमेट का किसके साथ फ्यूजन होगा, कंबाइन होगा विथ स्मॉलर मोटाइल मेल गेमेट। मेल गेमेट ऑलवेज स्मॉलर होते हैं और वो मोटाइल मूवमेंट होते हैं, फीमेल स्टेशनरी स्टैटिक होती है, फीमेल गेमेट इज स्टैटिक, ओके। मेल गेमेट इज मूवमेंट करते, दैट इज मोटाइल। एग्जाम्पल क्या याद रखना है आपको, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में क्या होता है, वो गेमस होता है, ओके। चलो, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। अब एल्गी हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं, कैरिड आउट बाय एल्गी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एल्गी, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है अपने पूरे अर्थ पे वो एल्गी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एल्गी का, ओके। दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। तो एल्गीज जो होते हैं ना, बहुत सारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, एंड वो जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, वो सब एल्गी को कंज्यूम करते हैं, ओके। चलो, जैसे कि एग्जांपल है पोरफाइरा, लैमिनारिया, सरगासम। ये जो तीनों एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल कई बार नीट में आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो 3 एल्गी हैं जो दे आर कंज्यूम्ड एज फूड, पोरफाइरा, लैमिनारिया एंड सरगासम, ओके। चलो, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, एग्जांपल एल्जीन। जो ब्राउन और रेड एल्गी हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्जीन एंड केराजिनिन, जो कि कमर्शियली हम इसको लैब पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो अगार जो है वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स फॉर दोज पर्सन हु आर वर्किंग इन लेबोरेटरी और इन लैब, ओके। तो उनकी वो क्या अगार किससे बनता है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। जब आइसक्रीम आप खाते हो उसमें अगार यूज़ होते हैं, जेली खाते हो उसमें भी अगार यूज़ होते हैं, और जो लोग माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स, दे यूज़ अगार फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, ओके। नेक्स्ट इज क्लोरेला। क्लोरेला जो है, क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गा दैट इज रिच इन प्रोटीन, इज यूज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर। जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके लिए खाना जो होता है क्लोरेला होता है, क्योंकि उसमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होता है, तो दैट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी एंड दैट विल हेल्प दैम टू वर्क देयर, ओके। क्योंकि उनका बहुत दिनों का ट्रिप होता है, 6 months 1 year, ओके। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, अब हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये जो है सेलवाल कंपोजिशन एंड स्टोर्ड फूड, ये भी नीट में आता है कि ऑन व्हाट बेसिस द एल्गी इज क्लासिफाइड। कैसे क्लासिफाई होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेल वॉल एंड कंपोजिशन ऑफ स्टोर्ड फूड, ओके।
तो फॉलोइंग डिविजन्स, पहले क्लोरोफाइटा दैट इज ग्रीन एल्गी, फाइयोफाइटा ब्राउन एल्गी, ज़ैंथोफाइटा येलो ग्रीन एल्गी, रोडोफाइटा रेड एल्गी. So this four are the classes of algae, or you can say divisions of algae, okay, which we are going to study in the next class. आज के लिए algae इतना ही काफ़ी है. बाकी क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, येलो ग्रीन एल्गी, ज़ोडोफाइटा, रेड एल्गी, चारों एल्गी के बारे में पढ़ेंगे. देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देयर सेल वॉल कंपोजिशन, देयर स्टोर्ड फूड, जो क्वेश्चंस हमेशा आता है. ओके चलो, तो विद दिस एल्गी इज डन. एल्गी का जो भी बेसिक कंसेप्ट अबाउट एल्गी इज गिवन टू यू ऑल. नेक्स्ट क्लास विल टीच यू अबाउट द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ एल्गी, रेड ब्राउन जितने भी एल्गी हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले. तो प्लांट किंगडम बच्चों इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है. Something you have to remember because the terminology is completely new to you. Okay, so if you have any doubts regarding any classes of that is algae, so you can WhatsApp me or you can comment me in the comment section how is the class. If you have any doubts, I'm here to help you. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.